کشمیری پنڈت کو ملی جان کی دھمکی کے خلاف تحقیقاتی ایجنسیاں متحرک، معاملے کی نسبت تفتیش شروع۔ فی الحال مائیگرنٹ ملازمین کو گھر سے ہی کام کرنے کی دی گئی ہدایت۔ یوم آزادی 2026 کے موقع پر جموں کشمیر پولیس سے وابستہ 51 پولیس اہلکار بہادری اور قابل قدر خدمات کے اعزازوں کے لیے منتخب۔ 15 اگست کو ان اہلکاروں کو نوازا جائے گا انعام سے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے تقسیم کے المیہ کو کیا یاد، بچ جانے والوں کی ہمت اور لچک کو کیا خراج تحسین پیش۔ 10 نومبر سال 2025 میں لال قلعہ بم دھماکے پر سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ رپورٹ۔ دھماکے کو عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے کیا منسوب۔ سنتاس معاہدہ پر شہباز شریف کا سخت موقف، کہا پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو دیا ناقابل برداشت قرار۔ ایم ایل اے بنی ڈاکٹر رامیشور سنگھ کی قیادت میں شاندار ترنگا ریلی کا انعقاد۔ ریلی میں پولیس، طلباء اور عام لوگوں کی بڑی تعداد نے کی شرکت۔ پورا شہر حب الوطنی کے نغموں سے گونج اٹھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو چین کی نیند نہیں ہونے دیں گے نصیب۔ اپوزیشن قائد راہل گاندھی، کہا بغیر نفرت کے عوام کے حقوق کے لیے آواز کرتے رہیں گے بلند۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ گورنمنٹ مڈل اسکول سائمن لولاب سے اساتذہ کی قیادت میں نونہالوں کی خوبصورت ترنگا ریلی۔ ہیڈ ماسٹر محمد اشرف شاہ اور ماسٹر بلال مسعودی نے یوم آزادی پر مجاہدین آزادی کو کیا خراج تحسین پیش۔ ایران کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے ایسے اقدام کیے جا رہے ہیں جو پہلے کسی بھی ملک نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ کی ایران کو معاشی دھمکی۔ ایران کے بندرگاہوں کی ناکہ بندی غیر معینہ مدت کے لیے رہے گی برقرار۔ امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کا بیان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید، اور اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے بحالی پیکیج کے تحت کشمیر میں کام کرنے والے کشمیری پنڈت ملازمین نے یوم آزادی سے قبل وادی میں ان کے ناموں، محکموں، پوسٹنگ کے مقامات اور ذاتی موبائل نمبروں پر مشتمل مبینہ دھمکیوں کی فہرست گردش کرنے کے بعد تازہ سیکیورٹی خدشات کو جنم دیا ہے۔ قومی انسانی حقوق کمیشن اور اقلیتوں کے قومی کمیشن پیش کی گئی ایک درخواست میں ملازمین نے فوری طور پر سیکیورٹی آڈٹ اور ان کی ذاتی اور خدمات سے متعلق معلومات کے مبینہ لیک ہونے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے مختلف محکموں میں ملازمین کے درمیان دھمکی آمیز لسٹ گردش کر رہی ہے۔ فہرستوں میں مبینہ طور پر ملازمین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 15 اگست کو سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کرے اور ان کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں انہیں نتائج بھگتنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ مائیگرنٹ ملازمین نے سوال کیا ہے کہ کس طرح خفیہ سروس کی تفصیلات اور ذاتی موبائل نمبر دھمکیاں دینے والے گروپس تک پہنچی، اور الزام لگایا کہ اس طرح کی معلومات کی گردش ڈیٹا کے تحفظ اور حفاظت میں سنگین خرابی کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ درخواست 2022 اور 2023 میں گردش کرنے والے اسی طرح کی فہرستوں کا بھی حوالہ دیتی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس طرح کی فہرستوں میں 56 ملازمین اور بعد میں 57 PM پیکیج اساتذہ کے نام آئے تھے۔ یوم آزادی 2026 کے موقع پر جموں کشمیر پولیس کے 51 اہلکاروں کو بہادری اور قابل قدر خدمات کے تمغوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ تفصیلات سرکاری اعزازات کی فہرست میں سامنے آئی ہے۔ دستیاب تفصیلات کے مطابق منتخب اہلکاروں میں 38 کو میڈل فار گیلنٹری جبکہ 13 کو میڈل فار میریٹوریس سروس کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر ہوم گارڈز اور سول ڈیفنس کے ایک اہلکار کو بھی قابل قدر خدمات کے لیے تمغے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ بہادری کے تمغے کے لیے منتخب 38 اہلکاروں میں کئی اعلیٰ پولیس افسران بھی شامل ہیں، جن میں DIG شیو کمار، IPS SSP شوبھت ڈی سکسینہ، IPS SP ناصر احمد، SP مشتاق احمد، DIG پانڈے راجو اوم پرکاش، IPS اور SP دیو یاڈی IPS شامل ہیں۔ DSP سرفراز بشیر کو میڈل فار گیلنٹری کا اعزاز دوسری بار دیا گیا ہے۔
वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने जुम्मे के दिन तकसीम के मुतासरीन और बच जाने वालों को याद किया और मुल्क की तकसीम से पैदा होने वाले अजीम इंसानी दुखों को याद करते हुए उन लोगों की तारीफ की जिन्होंने इस सदमे पर काबू पाया और अपनी ज़िंदगियों को असर-ए-नौ शुरू किया है। तकसीम के मज़ालिम की यादगारी दिन के मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकसीम ने कई ज़िंदगियों को तबाह कर दिया है, ख़ानदानों को बेघर कर दिया है, अपनों को जुदा कर दिया और सरहद के दोनों तरफ के लोगों को बेपनाह तकलीफ पहुँचाई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला के करीब होने वाले धमाके की जिम्मेदारी बरसगीर हिंद में अलकायदा से मंसूब की गई है। 10 नवंबर 2025 को होने वाले धमाके में 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा का ये अंदाज़ा ऐसे वक्त में सामने आया जब कौमी तहकीकाती एजेंसी हमले की तहकीकात जारी रखे हुए है। इस हफ्ते मंजर आम पर आने वाली 2 साला रिपोर्ट में कहा गया है नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला पर होने वाले हमले को सरकारी तौर पर अलकायदा से मंसूब किया गया था। अलकायदा के बारे में कुछ तशवीश थी कि बांग्लादेश का इस्तेमाल करने के लिए वहां सेल कायम करने की कोशिश की जा रही है। NIA ने इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले में चार्जशीट अंसारुल गज़वातुल हिंद से मुंसलिक थी, जिसे एजेंसी AQIS की शाख के तौर पर बयान करती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की एक तरफा मुअत्तली पर तबसरा करते हुए पानी को अपनी रेड लाइन करार दिया है। इस्लामाबाद में यादगार फतह की इब्तिदाई तकरीब से खताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। अगर भारत रास्त पर नहीं आया तो इसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। याद रहे, भारत की हुकूमत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करते हुए एक जवाबी कदम उठाते हुए सिंतास माहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अपने खताब में अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ा और सऊदी अरब और तुर्की के साथ होने वाले माहिदे का भी जिक्र किया। भारत ने सिंतास माहिदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके ख़ुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत बराह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के हर कोने में यौम आज़ादी के मौके पर खूबसूरत अंदाज में तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है और इस बार हर घर, हर नुक्कड़ और हर चौराहे में आपको देश की आन बान और शान तिरंगा फिजा में लहराते हुए नजर आ रहा होगा। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि लोग बिना मजहब व मिल्लत के वतन के तई अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए इन रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी के तहत आज MLA बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह की क़यादत में एक शानदार तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों, मदरसों में ज़ेर तालीम तलबा और जम्मू कश्मीर पुलिस आम लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुब्बुल वतनी से सरशार नए सितारों ने अपने हाथों में तिरंगा ले रखा था और हुब्बुल वतनी के गीत गाकर पूरे शहर का माहौल पुरफिजा बना दिया। इस मौके पर MLA बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने यौम आज़ादी के दिन पर मुफस्सल रोशनी डाली। पेश है ये रिपोर्ट। पहले तो मैं आने वाले स्वतंत्रता दिवस की अब पूरे देशवासियों को, देश और विदेश में रहने वाले सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हर जगह इस वक्त तिरंगा रैली निकाली जा रही है, उसी संदर्भ में बनी में भी आज एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें सभी लोगों के साथ मिलके, बनी के शहरियों के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सबके साथ मिलके एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। और ये तिरंगा रैली दर्शाती है कि हमारे दिल में और हमारे मन में देश के लिए क्या जज्बा है, इस तिरंगे के लिए क्या जज्बा है। और ये तिरंगा हमेशा बुलंद रहना चाहिए। जब भी ये बात देश की आए, जब भी तिरंगे की बात आती है तो हमें जात पात, हिंदू मुसलमान, पॉलिटिक्स से उठ के हमें एक होके चलना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है और इस देश को बनाने का काम भी हमारा है। और इस देश को बचाने के लिए, बनाने के लिए कई शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। ये झंडा जो है कई शहीदों के रंगों से, खून से रंगा हुआ है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि इस झंडे का सम्मान किया जाए, इस झंडे को उठाया जाए। और ये देशभक्ति का एक, हमारा देशभक्ति दिखाने का एक जज्बा है कि जो तिरंगा रैली निकाली गई है, उस तिरंगा रैली में जितने लोग आए हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आने वाले तरीके में जब भी देशभक्ति का कोई प्रोग्राम होगा, बनी इस तरीके से ही बढ़ चढ़ के हिस्सा जरूर लें। इधर आज यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल साइवन लोला में एक शानदार तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के असातिज़ा और आम लोगों ने भी शिरकत की। इस तिरंगा रैली की क़यादत हेड मास्टर मोहम्मद अशरफ शाह, मास्टर बिलाल मसूदी, मास्टर गुलाम मोहम्मद शाह और PT एजाज अहमद कर रहे थे। रैली में शामिल असातिज़ा और तलबा ने
ने तिरंगा को हाथों में लेकर फिजा में बुलंद किया और वतन के तई अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। इस मौके पर नन्हे बच्चे हुब्बुल वतनी के गीत में मगन नजर आ रहे थे, जबकि मास्टर मोहम्मद अशरफ और मास्टर बिलाल मसूदी ने यौम आज़ादी के दिन के हवाले से मुफस्सल रोशनी डाली। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि तब्दीली के लिए सियासी ताकत के साथ भारत के तनों और हर फर्द की इजहार राय की आज़ादी की हिफाजत ज़रूरी है, इसलिए कांग्रेस बगैर नफरत और तशद्दुद के अपनी इस लड़ाई को जारी रखेगी। राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस के कौमी इजलास की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं संघ RSS और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लोगों की आज़ादी छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को किसी एक तयशुदा निज़ाम में ढालने के बजाय मुल्क के लोगों को अपने बात कहने और अपनी शनाख्त के साथ आगे बढ़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि RSS की पुरानी ताकत छोटे ताजर और छोटे कारोबारी थे, लेकिन नोटबंदी और GST ने इन्हें तबकात और नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान को खबरदार किया है कि वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ ऐसे इकदाम करने जा रहा है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जुमेरात के रोज न्यूज़ मैक्स के प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक मजीद ऐलानात का इंतजार करें। इसका कहना था कि हम ऐसे इकदाम नाफिज करने जा रहे हैं जो किसी मुल्क की मुआशी तौर पर तनहा करने की तारीख में पहले कभी नहीं देखे होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुआशी दबाव और किसी मुल्क को तनहा करने का ऐसा मजमुआ होगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। आबनाई हरमुज़ में जारी नाकाबंदी भी बरकरार रहेगी, जिसके नतीजे में ईरान की बंदरगाहों की जानिब से किसी चीज़ का आना या जाना वहाँ से मुमकिन नहीं होगा। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।